اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے۔ فارم 47 کی حکومت میں شہباز شریف کی حکومت نے مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے۔ عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے۔ شکریہ بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے۔ ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی پی ٹی آئی رہنما اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے علامتی بھوک ہڑتال کی گئی ہے اور ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی اور یہ بھوک ہڑتال پورے ملک میں پھیلے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے قائد اور ان کی اہلیہ اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہے جیلوں میں قید ہیں ان کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہال میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے۔ تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ۔ اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 باتیں کروں گا۔ نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی تو اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا؟
किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं। ये मुल्क जो है ये ताकत के ज़ोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात जो इन महंगाई की बात तो की, उमर साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी ये जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई ये बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने उन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कायदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारी सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे साहबी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजर से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करें। मैं एक सेकंड कर दूं जी, फिर आप कर लें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है, साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौक़िफ़ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज़ की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIRs हैं, ये जो वहाँ पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वक़्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादरों चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, महज़ब तरीक़ाकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आइनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर रहाइज है। देखें, इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है।
किन के खिलाफ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिकलाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों के खिलाफ है। मुल्क को सियासी बदतरीन सियासी बहरान हत्ता दलदल में डालने वालों के खिलाफ है। माशी इस्तिकलाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों का है। माशी तौर पर मुल्क को अगयार के हाथों में बेच देने वालों के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से जो इस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और ख़तरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर, इसकी तबाही बर्बादी के, इनके खिलाफ है कि जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए है। लिहाजा मैं अपने जवानों से कहूँगा, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म और सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है एक मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे, और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर हैं, जो भी जिस ज़िंदगी के शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है इस वक्त। पाकिस्तान के अवाम उसको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। 90% से ज़्यादा अवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान के बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को से कहता हूँ कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है। मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी के लिए, मजदूरों के हक़ के लिए, बेरोज़गारों के हक़ के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिस्से उनके हक़ के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह हैं उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते कि हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आज़ाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोज़गारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन लें एक मिनट, आखिरी बात सुन लें प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुम्मे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, GB से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है, इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठे इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। मामला रखा, स्पीकर साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या अश्योरेंस दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला हमने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया था? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की इत्तेहादियों की हमरा मीडिया से गुफ्तगू, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है जुम्मे के रोज़, और उनका कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।